sir, and good evening everyone. सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। जी सर। आज हमारे आईएफपीएच के प्लेटफॉर्म पे हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर ए गुप्ता सर। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर के लिए शांत हो जाएं। सर कैन वी स्टार्ट? या आज के हमारे गेस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर ए गुप्ता सर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, गोल्ड मेडलिस्ट, फाउंडर डायरेक्टर AKG OVHAMS, Om Vidya Institute of Homeopathy and Allied Medical Sciences, accredited in Limca Book of Records, ex-visiting professor BR Sur Homeopathic Medical College and Hospital, Delhi, ex-guest professor College of Homeopathy, UK. He is also guest physician at Glasgow Homeopathic Hospital, Glasgow. Sir is practicing since 1977. He is also the former nominated member of Homeopathic Advisory Committee and Delhi Board of Homeopathic System of Medicine, Government of Delhi. He is doing special research work in cases of motor neuron disease patients. He is the author of The Problem Child and Homeopathy. Sir is the National Secretary General, the Homeopathic Medical Association of India, ex-president HMAI Delhi, ex-president SDHA, advisor International Institute of Lifestyle Management, recipient of International Dr. Hahnemann Award of the Millennium, Dr. Yudhvir Singh Award, Lord Dhanvantri Award and Life Achievement Award, Gold Medal by Pebble Hills University, Bharat Excellence Award and Gold Medal Homeopathic Gem Award, Global Health Care Excellence Award, Dr. Mahinder Singh Memorial Award, Homeo Chikitsa Seva Ratan Award, and so many others. Sir has participated in India International Science Festival, that is IISF, in 2019 and 20, Kolkata. Sir has been invited to chair session in Wellness Conclave and as speaker in Health Research Conclave. Sir has presented many scientific papers in various seminars, symposiums, and national and international conferences in India and abroad in Singapore, Italy, Moscow, Paris, Almaty, Malaysia, Sri Lanka, Japan, Germany, US, Ecuador, South Africa, Brazil, etc. Sir has chaired many scientific sessions in the conferences. He has contributed many scientific papers and articles published in periodicals, magazines, medical journals, and national daily newspapers. He has delivered talks over AIR and Doordarshan and many TV channels in various health programs. He has given slogan "Homeopathy ensures health safely" to the profession. He has given many webinars and he has his website www.ovhams.com is dedicated to homeopathy and allied systems of medicines with motto of medical and health care to all through homeopathy. He is treating patients all over the globe with homeopathy. सर का आज का टॉपिक है एटोपिक डर्मेटाइटिस के लिए होम्योपैथिक दृष्टिकोण। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना आज का क्लास शुरू करें। थैंक यू डॉक्टर अंकिता फॉर इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। पता नहीं मैं इतने अपने लोगों के बीच में कितना वहाँ पे उभर पाऊंगा पूरा, बट स्टिल अपनी कोशिश करूंगा कि हम अपने साथियों के साथ जितनी भी नॉलेज है शेयर हम करें। और हमारा मेन थे अभी तो, क्योंकि आज वैसे भी 27 अप्रैल है और अप्रैल महीना एक वैसे ही बड़ा पावन है हर होम्योपैथ के लिए, क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन का बर्थडे होता है, तो इसलिए पूरा महीना भर ही हम उनकी याद करते हैं, उनको आई मीन डेडिकेट करते हैं, उनको आई मीन ग्रीट करते हैं। और जैसे कि मैंने अपनी इसलिए बैनर में भी इनका वो लगाया हुआ डॉक्टर हैनीमैन के साथ, एंड वी से दैट होम्योपैथी फॉर हेल्थ, हैप्पीनेस एंड हार्मनी। ये एक हमारा एक उसका ध्येय भी है, जिससे हम आई मीन सब लोगों को होम्योपैथी से अच्छा उपचार कर सकें। तो कैन आई शेयर माय स्क्रीन? जी सर।
सबसे पहले तो डॉक्टर मितुल साहनी सर को प्रणाम, और उनका उनका आदेश हुआ कि वो लेने के लिए, तो आई मीन कैनॉट मना नहीं कर सकते। और ये तो वैसे भी एक ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि इंटरनेशनल लेवल पे होम्योपैथी को प्रमोट करने का आई मीन प्रयास किया जा रहा है। और आज 382nd एपिसोड है उसका, वो भी जो कि पिछले साल आई मीन डॉक्टर हेलमिन के बर्थडे पे हिंदी के लिए स्टार्ट किया गया था। वैसे तो इंटरनेशनल उसमें जो इंग्लिश का चल रहा है वो तो काफ़ी आई थिंक आई मीन समय से चल ही रहा है। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, टॉपिक डर्मेटाइटिस। इसमें खास तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक सबका वेलकम है, एंड एज वी से दैट होम्योपैथी एंश्योर्स हेल्थ सेफली। आज का टॉपिक डर्मेटाइटिस। होम्योपैथी एक ऐसी साइंस है, विद्या है, जिसमें आम लोग ये सोचते हैं कि शायद बच्चों के लिए, स्किन के लिए, या आई मीन बूढ़े लोगों के लिए ही आई मीन सक्षम थी, पहले ये माना जाता था। परंतु आज की डेट में अगर हम देखें तो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के द्वारा हम हर तरह के लोगों का इलाज कर रहे हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, स्त्रियां भी हैं, पुरुष भी हैं। और तो और अब होम्योपैथी द्वारा पेड़ पौधों का और जानवरों का भी इलाज किया जा रहा है सफलतापूर्वक। हर किसी होम्योपैथी की प्रैक्टिस के अंदर स्किन एक ऐसा आई मीन एरिया है जहाँ पे वो बहुतायत में मरीज देखते हैं, क्योंकि स्किन के जो आई मीन प्रॉब्लम हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास वो जो कहा जाता था कि पहले की लाइक अगर आई मीन एक डॉक्टर था, उसने अपने बच्चे को पूछना आई मीन आपने क्या बनना है, तो कहते मैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। उसने पूछा क्यों, कहते कि इसमें क्या नाम, एक तो मरीज कभी पूरी तरह से ठीक नहीं होता, और उसमें बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं होती, इसलिए आराम की ज़िंदगी है। ये एक उन लोगों का विचार था, परंतु होम्योपैथी के लिए ऐसा नहीं है। होम्योपैथी के लिए जहाँ पे आई मीन दूसरे रोगों के लिए से ट्रीटमेंट कराते हुए लोग उसको विफल हो जाते हैं, और बारी बारी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, और जब पूरी तरह से वो ठीक नहीं हो पाते तब वो जाके दोबारा होम्योपैथी का दरवाज़ा खटखटाते हैं, ये सोच के कि चलो यहाँ पे सुना है कि होम्योपैथी में स्किन की बीमारियों का इलाज ज़्यादा अच्छी तरह होता है। तो बात कर रहे हैं हम आज एटॉपिक डर्मेटाइटिस यानी इन्फेंटाइल एक्जिमा की। मैं शुरुआत में आपको अभी सिर्फ कुछ केस से बात कर रहा हूँ। ये 1 साल का बच्चा था, वो जो मेरे क्लिनिक पे लाया गया था। अगर आप इसको ध्यान से देखें, इसके हाथ बंधे हुए हैं और पट्टी से उसको कमर से भी बांध के रखा हुआ है, क्योंकि इसकी ये दुर्दशा थी कि आप किसी को देख सकते हैं कि स्किन पे, फेस पे शायद ही कोई जगह बची हो जहाँ पे उसको इरप्शन या रैशेस नहीं हो, और वो खुजली इतनी बुरी तरह से करता था कि खून निकाल लेता था। और वो इनटॉलरेबल इचिंग को दूर करने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए पेरेंट्स ने ये तरीका अपनाया कि उसके हाथों में एक तो आई मीन दस्ताने पहनाए, और उनको भी हाथों को, क्योंकि दस्ताने से भी वो रगड़ लेता था, तो उसको हाथों को भी बांध दिया गया। इसको पूरी इचिंग होती थी, पूरी ऊजिंग होती थी, स्टिकी ऑफेंसिव डिस्चार्ज होता था, स्किन लीजन्स थे, स्केल्स जो कि पील ऑफ होते थे, और उसमें से काफ़ी गाढ़ा थिक डिस्चार्ज निकलता था कानों के पीछे से भी। हाँ, हिस्ट्री लेने पे इसकी ओवरड्यू डिलीवरी थी 8 दिन। उसके आई मीन डिलीवरी टाइम, उसके जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम था उससे ज़्यादा थे। देयर वाज टेंडेंसी ऑफ 6-7 लूज टूल्स होते थे उसको ऑफेंसिव, जिसमें ब्लैकिश ब्राउनिश थे, ड्राई खांसी और ओकेजनल वॉमिटिंग। लिम्फ नोड्यूल्स पैल्पेबल थे आई मीन कान के पीछे एंड सर्वाइकल चेन रीजन में। चाइल्ड वॉज स्लीपलेसनेस थी ड्यू टू प्रोफाउंड इचिंग और मार्क्ड रेस्टलेसनेस। और इसके बच्चे के जो दांत निकलने के वो थे, तीसरे महीने में शुरू हो गए थे। यूजुअली हम देखते हैं कि बच्चों के दांत
6 महीने या 6 महीने के बाद निकलते हैं, पर इसमें 3 महीने के बाद दांत निकल आए थे। शुरू में इसको ग्रेफाइटिस वनम दी गई बाय किसी और डॉक्टर के थ्रू, आई मीन होम्योपैथ के थ्रू, जिससे कि को बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिला था। उसके बाद इसको सल्फर 30 दी गई, जिसकी वजह से उसको काफ़ी चेंज आया, उसमें ऑफेंसिवनेस और थोड़ी स्टूल चेक हो गए, बट द खांसी उसकी जो थी वो परसिस्ट कर रही थी, एंड कानों के पीछे का डिस्चार्ज बढ़ता गया था। इसको फिर सल्फर के बाद वो प्लेसिबो ही रहा कुछ समय के लिए, और सडनली एक दिन उसके वह स्मेल, बहुत स्मेली ऊजिंग डिस्चार्ज शुरू हो गया ऑल ओवर द बॉडी। अगर आप इसको अब आप देख सकते हैं इसकी पिक्चर में भी, तो उसको पायरोजन 1M का एक डोज दिया गया फॉलोड बाय सेटलेक, और विद इन 2 डेज जो उसकी ऑफेंसिवनेस थी, द स्मेल डिसअपियर्ड एंड द स्किन बिकेम मच क्लियर ऑल ओवर द बॉडी। अब इसके बाद इसका फेस बिल्कुल क्लियर है, हैंड्स क्लियर हैं, सिर के ऊपर कोई लीजन अब नहीं बचे हुए, नो मोर स्किन इरप्शन ऑन द स्किन, एंड लुक्स मच हेल्दियर। और अब वो रात को बच्चा आराम से सो पा रहा है, बिना किसी आई मीन दिक्कत के, बिना किसी खारिश के, और बिना किसी आई मीन रेस्टलेसनेस के। और मैं यहाँ पे ये जरूर आई मीन आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ आई मीन इसके ट्रीटमेंट में इसको बीच बीच Antimcrude, Podophyllum, Merxol, and Pulsatilla and Hipersulf were also the medicines which were given to him. मेरी अपनी ये मेरी बहुत शुरू के डेज की प्रैक्टिस की बात है, तब इसलिए ये वाला केस है, पुराना है, तो इसलिए मैं तब की अप्रोच और अब की अप्रोच में डेफिनेटली फर्क भी आया है। परंतु कुछ जो हमारे नए साथी हैं, जो आई मीन स्टूडेंट्स हैं, उनको आमतौर पे देखने को मिलता है जब हम किसी सेमिनार में जाते हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, तो वो सिंगल मेडिसिन दी और पेशेंट का आई मीन ट्रिमेंडस रिलीफ मिलता है। तो ये ऐसा होता है, पर हर केस में ऐसा संभव नहीं है। तो और मोर ओवर मरीज को ठीक होने से मतलब, तो अगर आपकी वो कई बार बीच में आपको कोई इंटरकरेंटली या सिम्टोमेटिकली कोई दवाई देनी पड़ती है, तो उसके लिए हम दे भी सकते हैं। इस पेशेंट की आप हमें वो देख सकते हैं डिफरेंट स्टेजेस की, और इसका फॉलोअप कम से कम हमने 3-4 साल तक फॉलोअप पूरा रहा, और आज भी वो पेशेंट मेरे आई मीन कांटेक्ट में है, उसकी मदर, एंड नाउ ही इज अराउंड मोर देन 30-35 इयर्स ओल्ड बॉय विद हैविंग हिज ओन चिल्ड्रन आल्सो। तो अगर आप वो देखते हैं इसकी पहली कंडीशन में, दूसरी पिक्चर में, तीसरी में और चौथी में, ये उसका एटोपिक डर्मेटाइटिस की कंप्लीट वो रिकवरी वो था। कमिंग टू द अनदर केस, ये एक बच्ची है, 3 महीने की थी, जो कि मेरे पास लाएगी विद कंप्लेंट्स ऑफ इचिंग रैशेस ऑल ओवर द बॉडी सिंस बर्थ। जैसे कि हम अक्सर हिस्ट्री लेते हैं, मदर हैड एलर्जी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी and delivery conducted in induced labor, and mother had allergy at the time of delivery. बच्चे को ड्राई स्केल्स ऑन द फेस, नेक, हैंड्स, हिप एंड लेग्स, itching with dryness, bleeding on scratching, more in the evening at night, खांसी, loose with occasional vomiting, stool whitish hard balls-like with changeable stool, redness of the anus and straining of the for the stools with flatus, hiccups, worse after the feed. In the past history, mother had measles at 1 month ago, and the father had allergic cold. Disharmony in the parents, though both mother and father were working, and the child was being brought up by maternal grandparents. यहाँ पे मैं डेफिनेटली एक ऑब्जर्वेशन अपनी भी है, और हमारे होम्योपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि जो दिखने वाला केस सिंपल एटोपिक डर्मेटाइटिस का होता है, इसीलिए शायद एलोपैथिक में वो मरीज पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि उनका इलाज या तो लोकल मेडिकेशन की एप्लीकेशन के साथ किया जाता है, या स्टेरॉइड के साथ किया जाता है, जो उसकी तकलीफ को दबा डेफिनेटली देते हैं, पर पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाते, क्योंकि उनका अप्रोच वहीं तक रहती है। और जब हम ये देखते हैं, हम उसमें भी ट्राई टू फाइंड आउट कि उसमें कोई हमें हिस्ट्री मिल जाए, कोई पेरेंटल हिस्ट्री मिल जाए, या कोई कॉजेटिव फैक्टर मिल जाए,
तो ये देखने में आया है कि जिन बच्चों में ये प्रॉब्लम है, उनके पेरेंट्स में कहीं न कहीं तनाव या आपस में तालमेल पूरा नहीं बैठता, तो उसका प्रभाव भी बच्चों पे पड़ता है। ये हमने आपने आपने भी अपनी प्रैक्टिस में देखा होगा कि बच्चों को किसी को दस्त लग जाते हैं, किसी का अस्थमा बिगड़ जाता है, किसी को स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, जब भी उनके घर में कोई स्ट्रेस या स्ट्रेन होता है। हालाँकि कहने को बच्चा छोटा है, पर उसको इन सब चीज़ों का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। Pulsatilla cured the case. Other remedies used were sulfur, calcare carb, nephritis and chelidonium. आप इस बच्चे की आप वो देखें, और ये जो इसका लेटेस्ट है फॉलोअप, द यंग गर्ल, शी इज अराउंड 19-20 ईयर्स ओल्ड नाउ। तो 1 महीने की बच्ची से लेकर 19 ईयर्स तक कोल्ड की उसमें देखने में उसका कोई दोबारा वो रिलैप्स वगैरह नहीं हुआ, एंड द चाइल्ड इज एब्सोल्युटली हेल्दी एंड हार्टी, एंड नाउ शी इज बिकम अ ग्रोन अप वुमन। एटॉपिक डर्मेटाइटिस या इन्फेंटाइल एक्जिमा में होम्योपैथिक की अप्रोच। अब हम ये कहते हैं एटॉपी का मतलब क्या होता है कि इट इज स्ट्रेंज टू सिग्निफाई द हेरिडिटरी टेंडेंसी टू डेवलप एलर्जीज टू फूड एंड इनहेलेंट। एटॉपिक डर्मेटाइटिस का सबसे पहले उपयोग या बताने वाले कोका के थे, जो जिन्होंने 1925 में इस टर्म को इंट्रोड्यूस करा था। एटॉपिक डर्मेटाइटिस को हम अक्सर देखते हैं कि जिन बच्चों में ये स्किन की प्रॉब्लम होती है और जो एलोपैथिक के ट्रीटमेंट कराते हैं, जो लोकल एप्लीकेशन से ट्रीटमेंट करके वो ठीक करते हैं, उनकी वो जो प्रॉब्लम है स्किन से बदल के रेस्पिरेटरी साइड पे चली जाती है, और उनमें देखने में आता है कि ये एस्थमा और एक्जिमा का सिंड्रोम हो जाता है। जब अब वो एक्जिमा का इलाज करते हैं तो एस्थमा उभर जाता है, और जब वो एस्थमा का इलाज करते हैं तो एक्जिमा उभर जाता है। ऐसे ही समय में अगर होम्योपैथी दवा को हम देते हैं और इन चीज़ों को खास तौर पे ख्याल में रखते हैं, देन वी आर एबल टू ट्रीट द पेशेंट इन अ मच बेटर मैनर। Family history or personal history of collateral allergies like asthma, eczema, and hay fever are usually seen उन चीज़ों में बच्चों में इन केसेस में दिखती है। और सम में ऑल्टरनेट इन, जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ पेशेंट में साइमल्टेनियसली भी चल सकती हैं, और कुछ मरीजों में ये ऑल्टरनेट करके चलती है कि कभी एक समय पे एलर्जी स्किन के ऊपर है और दूसरे समय में रेस्पिरेटरी एलर्जी उभर के आती है। अब अगर हम बात करते हैं कि सिम्टम की, तो ये इट इज करेक्टराइज्ड बाय सिलेक्टिव फ्लेक्सुरल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सट्रीम क्रॉनिसिटी विद acute exacerbation from time to time, a familial a f- familial and personal allergic predisposition and a very sensitive emotional nature। जैसे मैंने अभी पहले भी बात कर रहा था कि ये देखने में आया, हमने अपनी अराउंड 48 ईयर्स की प्रैक्टिस में ये देखा कि जिन बच्चों को एटॉपिक डर्मेटाइटिस है या एलर्जिक का जो एस्थमा एलर्जिक और एक्जिमा सिंड्रोम है, वो बच्चे काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, और उनको बाह्य स्टिमुलेंट्स प्लस किसी भी तरह की एक्सेसरबेशन हो तो उनका इम्पैक्ट उन पे पड़ता है। चाहे अगर कोई फैमिलियल हिस्ट्री में कोई किसी में कोई कलेश हो रहा है, घर में कलेश हो रहा है, या आपस में नहीं बनती, जैसे मैंने पहले बताया था पहले वाले केस में, और उस टाइप की चीज़ों में देखने में आया कि उनकी प्रॉब्लम जो कि ठीक भी चल रही होती है, सडनली अगर कोई इस तरह का एपिसोड होता है तो बढ़ जाता है। और ये होम्योपैथी के डॉक्टर के लिए काफ़ी अच्छा होता है कि उसको इस सिम्टम को ले कंसीडर कर पाए, और उसको ये सिम्टम मिल जाता है कि इस तरीके की सेंसिटिविटी, इस तरह की स्पेशल सेंसिटिविटी ऑफ द चाइल्ड, तो हम उसको उस आधार पे भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि वैसे भी जैसे कि डॉक्टर हैनीमैन ने कहा है, वी हैव टू ट्रीट द पेशेंट एंड नॉट द डिजीज। तो उसी पेशेंट की अगर जो उसकी जितनी भी सेंसिटिविटी है, मानसिक सेंसिटिविटी है, फिजिकल सेंसिटिविटी है, उन चीज़ों को मद्देनजर रख के, ध्यान में रखते हुए ही हमें प्रॉपर दवाई का चयन करना चाहिए। और दूसरा, एक्जीमेटस प्रोसेस इज usually the result of endogenous sensitization, but exogenous allergies may play a part।
यहाँ पे एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज देखने में आती है, क्योंकि हम आमतौर पे अगर कोई बच्चा आता है इसको, या घर वाले भी कहते हैं कि वो एलर्जी हो गई। अब इस एलर्जी को फाइंड आउट करना इट्स अ वेरी हरकुलेन टास्क, मतलब ये इतना आसान नहीं है जितना आसान हम कह देते हैं कि एलर्जी है। एलर्जी उसको किस चीज से हुई है, इसका पता कर पाना, उसकी संवेदनशीलता किस चीज पे है, बहुत बहुत मुश्किल काम है। पहले तो टाइम था जबकि आई मीन इंजेक्शन लगा के या बैक पैच टेस्ट करते थे, पर अब हालांकि हमारे पास ब्लड टेस्ट में के द्वारा भी पता चल जाता, परंतु फिर भी पूरी चीजों के बारे में जांच कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एलर्जीज इंटरनल भी हो सकती हैं और एक्सटर्नल भी हो सकती हैं जो एलर्जेंस हैं। जैसे कि प्रोटीन की खाने की चीजों में है, हम आमतौर पे देखते हैं कि जो एलर्जी करने वाली चीजें हम उनके लिए मना भी कर देते हैं, परंतु यहाँ पर देखने में आया कि बच्चों में उनकी सेंसिटिविटी या हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको हम एलर्जी कह रहे हैं, वो इवन मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट से भी हो सकती है, आटे से भी हो सकती है, आई मीन बहुत सारी चीजें हैं, और उसका पता कर पाना आमतौर पे मुश्किल पड़ता है। पर ये ऑब्जर्वेशन अगर पेशेंट और पेशेंट के जो घर वाले हैं वो उसको अच्छी तरह कर सकते हैं, या डॉक्टर की अपनी ऑब्जर्वेशन भी है कि उनको जब वो चेक करते हैं तो उसकी पूरी डिटेल लेते हैं, तो वहां से भी उन चीज को निकाला जा सकता है। हालांकि इलाज के समय में जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ पाएगा, परंतु अगर हमें एलर्जन का पता चल जाता है और हम दवाई देते हैं, तो उसके जो एपिसोड्स, रेकरेंट एपिसोड्स ऑफ एलर्जी के हैं, जितने कम होंगे तो उतनी जल्दी उसका ठीक होने की संभावना अच्छी हो जाती है और वो जल्दी ठीक हो सकता है। और कुछ जो बाहर एक्सटर्नल आई मीन एलर्जेंस हैं, कि जिन बच्चों को मैं आई एम रिमाइंडेड ऑफ अ केस कि इस बच्चे को एलर्जी स्किन की भी थी और रेस्पिरेटरी भी थी। उसकी प्रॉब्लम निकली, पता करी कि वो जो घर में उनके स्टफ टॉयज होते हैं ना, जिसमें कि जैसे टेडी बियर है या कुछ वो रखे, मंकी रखे हुए हैं, हाथी रखा हुआ है, या कुछ कुछ भी वो रखे हुए हैं, उनकी डस्ट और उसकी वजह से। तो ये आप अपने प्रैक्टिस में इन चीज़ों को जरूर ध्यान में रखें, जब भी आपके पास कोई इस तरह का मरीज आता है, तो उसकी उसकी इन चीज़ों को जानने की कोशिश करें कि उसके कौन कौन से एलर्जन हो सकते हैं, ताकि हम उनको उन चीज़ों से प्रिकॉशन ले सकें। जैसे कि हमने हमें डॉक्टर हेनीमैन ने कहा है कि अगर वहाँ पे हमारा कोई मेंटेनिंग कॉज रहता है, तो बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर पाना मुश्किल हो जाता है। अगर हम मेंटेनिंग कॉज को हटा लेते हैं, तो मरीज की हमें सेंसिटिविटी को भी ठीक किया जा सकता है और वो भी जल्दी ठीक हो सकता है। द exhibitor's process is usually the result of sensitization of both internal as well external. Now, role of homeopathy. अब besides the allergen, जैसे मैंने पहले कहा कि इमोशनल स्ट्रेस और पेरेंटल एटीट्यूड कैन ऑल्सो कॉज द कंडीशन। आपने अपने क्लिनिक्स में अक्सर सुना होगा कि जो पेशेंट बच्चा है वो दिन भर ठीक रहता है, पर जैसे ही वो उसकी माँ आई मीन जो वर्क करती है, आई मीन वर्किंग वुमेन है, और जैसे ही घर आती है, शाम को आती है, और वो बिखरना शुरू हो जाता है और वो अपने आप की अपनी रेस्टलेस हो जाता है या रोना शुरू कर देता है। हालांकि उसको ये कोई डायरेक्ट वो नहीं है, बट दिस इज अ इमोशनल उसकी होती है कि लाइक मदर आएगी, मदर मेरे को उठाएगी, मदर जैसे वो करेगी। तो ये उसके बच्चे की अपनी रिएक्शन है, जो कि हम बड़े लोग सोचते हैं कि इसको अभी तो बच्चा है, पर बच्चे के इमोशन को बहुत अच्छी तरह आजकल को आई मीन इम्पैक्ट करते हैं, एंड वी नीड टू टैकल विद देम। और अगर इस टाइप के अभी को सिम्टम मिलते हैं, तो ये हमारी दवाई के चयन के लिए भी काफी लाभदायक हो सकते हैं। तो इसलिए हमें प्लीज आई मीन मैं ये चाहूंगा कि हम अपने सभी साथियों से कहूँ कि जो अब आप हिस्ट्री लेते हैं, तो उनमें इन चीजों का भी ध्यान रखा जाए। और इसमें जैसे कि आज की डेट में है, पहले होती थी जब हमें व्हाट यू कॉल फैमिलीज बड़ी होती थी, जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो बहुत सारे लोग होते थे, तो बच्चों का इतना ज्यादा पता नहीं चलता था। कि आज की डेट में जब न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही हैं, पेरेंट वर्किंग है, दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, तो या तो वो नैनी के पास है या किसी उसके पास है, मतलब आपकी जो मेड है, तो अब मेड का आई मीन जो रख रखाव है वो डेफिनेटली पेरेंटल रख रखाव के बराबर नहीं हो सकता, ये हमें मान के चलना चाहिए। पर मजबूरी के हिसाब से
लोग बागों को वो चीजें करनी पड़ती हैं। तो ऐसे समय में आज के पेरेंट्स में उनमें एंजाइटी ज्यादा है। वो बच्चे को कोई तकलीफ हुई तो उसको जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बनाना को कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आराम आ जाए, और उसमें इस चीज का ध्यान नहीं रखते कि एक्चुअल कॉज कहाँ पे है। तो जो पेशेंट पेरेंट्स की एंजाइटी है और उन पेरेंट्स की दोनों हस्बैंड वाइफ में अगर किसी भी तरीके की तालमेल नहीं होती और बच्चे के सामने भी अगर उनमें कहा सुनी होती है या आर्गुमेंट्स होते हैं, तो इसका इम्पैक्ट भी बच्चे पर पड़ता है। तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और ताकि ये एक जैसे कि डॉक्टर हैनीमैन ने बहुत पहले भी ये कहा था कि वी आर ग्रेटफुल टू डॉक्टर हैनीमैन कि उन्होंने बताया कि हमें ट्रीटमेंट के साथ साथ जो काउंसलिंग है, जो एजुकेशन है ऑफ द फॉर द पेशेंट एंड वेलफेयर ऑफ द पेशेंट, उसको इम्पार्ट करना भी उतना ही जरूरी है। और एक वी आर वेरी हैप्पी एंड टू से सो कि होम्योपैथ प्लेज अ वेरी गुड पार्ट एज ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट और एज ऑफ अ काउंसलर। और हर होम्योपैथ अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है और पूरी टाइम देने की कोशिश करता है, परंतु फिर भी जहाँ पे वो चीज़ अगर पूरी तरह नहीं दे पाता, हमें प्रोफेशनल काउंसलर की हेल्प लेने में भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। वी कैन ऑलवेज टेक दी हेल्प, क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम पेशेंट का वेलफेयर है। तो उसके लिए हमें किसी भी तरीके की कोशिश करनी पड़े, चाहे दवा के साथ या साइकोलॉजिकली या उसको किसी तरह से भी, तो वो हमें लेनी चाहिए। होम्योपैथिक मेडिसिन हैड इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन दिस ट्रीटमेंट। जैसे मैंने पहले कहा कि मॉडर्न मेडिसिन में, एलोपैथिक में अगर वो किसी भी टाइप की वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो वो सभी मरीज जो उनके उस टाइप से आ रहे हैं उनको एक ही तरह की दवाई दी जाती है, चाहे वो हमें स्टेरॉइड्स लगाने के लिए हो, खाने के लिए हो, या कोई एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल क्रीम्स वगैरह वो यूज करते हैं। तो वो मे बी डिफरेंट कंपनीज की हो, डिफरेंट रेट्स की हो, बट बेसिक सॉल्ट वुड रिमेन द सेम, जो उसको ड्राई कर दे या जो उसको सुखा दे। जबकि ये चीज हम होम्योपैथी के अंदर, जैसे मैंने दोनों केसेस अपने पहले जो दिखाए, उसमें किसी भी ऑइंटमेंट की या किसी भी उसकी हमने यूज नहीं किया। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट होम्योपैथी कि व्हेन वी ट्रीट द पेशेंट, वी ट्रीट फ्रॉम विद इन। जब पेशेंट का अंदर से ठीक ये करते हैं, तो उसको बाहरी लेप की कोई जरूरत नहीं पड़ती। और जहाँ पे जो बाहर लेप यूज करते हैं वो आपको असर जल्दी दिखाता है, स्किन साफ जल्दी हो जाती है, पर वो इन्फेक्शन अंदर और डीप चला जाता है। एंड दैट इज हाउ वी से कि इट गोज फ्रॉम लेसर इंपॉर्टेंट टू मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन, स्किन से चेस्ट तक जाना शुरू हो जाता है। तो इस चीज का हमें खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए। अब एटॉपिक डर्मेटाइटिस में जैसे अभी इन्फेंटाइल में है, वो 2 महीने से लेकर 2 साल तक का हो सकता है। चाइल्डहुड में 2 साल से लेकर 10 साल तक का। और एडोलसेंस में 10 साल से ऊपर तक की। ये सभी तरह के मरीज इसमें एटॉपिक डर्मेटाइटिस से पीड़ित हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये इवोल्यूशन कैसे होती है, उसकी हाउ इट ग्रोज। The entity undergoes a clinical and histological evolution from an acute eczematous eruption in early life to a characteristic lichenified dermatitis seen in older patients, जिनमें प्राय देखने में छोटे बच्चों में कुछ हल्के रैशेज वगैरह दिखते हैं, जो बाद में पक जाते हैं और एक्जिमेटस हो जाते हैं, और बड़े होने पर पूरे के पूरे बड़े लीजन भी दिखा सकते हैं। In infancy, it usually begins at itchy और erythema of the cheeks। जैसे कि आमतौर पर देखो बच्चों को यहाँ पे हमें चीक्स में कुछ छोटे छोटे लाल लाल दाने हो जाते हैं, और वो बाद में अगर नहीं ठीक होता तो बढ़ता जाता है। और erythemal patches, minute epidermal vesicles develop rupture and produce moist and crust areas। जो पहले वहाँ पे आपको ड्राई सूखा रैश दिखता है, बाद में उसमें से कुछ पानी निकलना शुरू हो जाता है, या वो छाले की तरह बनता है, और उसमें से बाद में खलिपड़े जिसे कहते हैं पपड़ी टाइप बनना भी शुरू हो सकता है। इरप्शंस रैपिडली एक्सटेंड करते हैं, चीफली ऑन द स्कैल्प या फोरहेड पे, या यहाँ पे अपने बाजू के इसमें क्यूबिटल एरिया में या पॉप्लिटल एरिया में भी ज्यादा दिखाई देते हैं। और बच्चों के साथ साथ उसमें बटक्स में, उनके हिप एरिया में, वहाँ पे
दाने बढ़ते हुए नजर आते हैं, और जो कि आई मीन पहले शुरू में रेडिश से हो सकते हैं और बाद में उनमें पपड़ी से उतरने या डिस्कमिशन भी शुरू हो जाती है। और जो मॉइस्ट टाइप में क्या होता है, विच इज अ वेरी कॉमन, exudation may be marked as a can have many secondary effects from the scratching, क्योंकि जैसे पहले हल्की खारिश या हुई तो उसने स्क्रैच करा, तो वहां से उसके बाद पानी निकलना शुरू हो गया, पानी निकलने के बाद उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और वो आसपास का एरिया को बढ़ाता जाता है, जैसे कि आप इस बच्चे की केस में देख सकते हैं। द इन्फिल्ट्रेटेड पैचेस इवेंचुअली टेक एन characteristic lichenified appearance and itching is severe and the main symptom। वो आई मीन जो प्रेजेंटेशन होती है पेशेंट की, उस टाइम पे खारिश की और इस टाइप के आई मीन सिम्टम नजर आते हैं। और जबकि ड्राई टाइप में ये आपने बहुत कॉमनली देखा होगा कि आई मीन क्यूबिटल एरिया में या पॉप्लिटल एरिया में ड्राइनेस की होती है, जैसे आई मीन स्किन वाइट वाइट सी दिखती है या कई बारी लाइनें सी पड़ी हुई होती हैं, और इन सर्टेन केसेस जब बच्चा उसको स्क्रैच करता है तो वहां पे वो ब्लीड तक कर जाता है, और उसमें पानी पड़ जाए तो कुछ वो अगर पस पड़ जाए तो इन्फेक्शन भी होता है, उस इन्फेक्शन से भी बचाना हमारा को ध्यान में रखना चाहिए उसके लिए। इन मॉइस्ट इन्फेंट्स द स्किन सिम्टम्स डिसअपीयर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। ये देखा गया है कि आई मीन बाय द 2 साल तक की उम्र तक आते आते ये चीज आई मीन कई बच्चों में ठीक हो जाती है, परंतु ये हर एक बच्चे, अगर हाँ यहाँ पे मैं एक चीज और मेरे को याद आ रही है कि जैसे पहले पहले लोगों को आई मीन बच्चों को वो कहता था कि इसको थ्रोट खराब हो रहा है, टॉन्सिल हो रहे हैं, तो ये कहा जाता था कि 5 साल के बाद तक आई मीन बच्चों को ये टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और या कफ कोल्ड है अपने आप ठीक हो जाएगा, ये माना जाता था, परंतु ये वास्तव में हर केस में ऐसा नहीं है। जिन केसेस में ये प्रॉब्लम डीप रूटेड प्रॉब्लम है, कोई फैमिली हिस्ट्री है, हमने एलर्जी की फैमिली हिस्ट्री है, या उनके एडिनॉइड्स की प्रॉब्लम है, या दूसरी आई मीन स्किन एलर्जी के साथ है, वो इंटर रिलेटेड है, तो वो प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होती, उनका इलाज पूरा कराना जरूरी। और बाद में कई बच्चों के साथ ये देखा गया कि जब इलाज नहीं कराया तो उन्होंने उग्र रूप धारण ले लिया, एस्थमा के रूप में चला गया, और जिन्होंने टॉन्सिल के ऑपरेशन करा लिए या एडिनॉइड्स के ऑपरेशन करा लिए, साइनस के ऑपरेशन करा लिए, बाद में उनकी इम्यूनिटी और लो होती गई एंड दे डेवलप इनटू मोर कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। और इसमें आई मीन जो देखा है कि ऑब्जर्व आफ्टर इम्यूनाइजेशन, कई बच्चों में इंजेक्शन के बाद जो आई मीन जैसे मीजल्स के लगाते हैं या कुछ वो लगाते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं, तो उसके बाद बच्चों में कई सिम्टम्स ये पैदा हो जाते हैं, जहाँ पे कि हमारी दवाइयाँ मीजीरियम, थूजा, उसमें इम्यूनाइजेशन के अलावा और कोल्ड में एल्यूमिना, पेट्रोलियम एंड सोराइनम का काफ़ी अच्छा रोल है। पार्शियल और कंप्लीट रेमिशन ऑफ द dermatitis इन समर एंड रिलैप्स इन विंटर। यहाँ पे भी एक चीज हमने देखी कि कुछ बच्चों में अ, ये बात होम्योपैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसी पर्टिकुलर बच्चे की जो सिम्टम्स हैं किस समय में ज़्यादा तंग करते हैं, क्योंकि आमतौर पे ये कहा जाता है कि जो प्रॉब्लम है किसी को सर्दियों में ज़्यादा होती है, तो आई मीन विंटर प्रॉब्लम है, कईयों को समर्स में ज़्यादा होती है, कईयों को रेनी सीजन में ज़्यादा होती है। अगर हमें ये मोडालिटीज मिलती हैं तो डेफिनेटली ये हमें हेल्प करती हैं कि हमारे जो दवाई का चयन है उसको हम पूरी तरह से ठीक तरह से कर पाएं, और ये वूलन और उससे ह्यूमिडिटी से एग्रेवेट भी हो सकती हैं। द रोल ऑफ फूड एलर्जी इन इन्फेंटाइल एंड चाइल्डहुड एटॉपिक dermatitis इज स्टिल अ डिबेटेड पॉइंट। अब ये कहना कि जो खाने वाली चीजें हैं उसमें कितने प्रतिशत तक ये आई मीन उसके पॉजिटिव फैक्टर हैं, ये कहना मुश्किल है, परंतु हैं तो डिपेंड करता है कि उनके साथ कुछ अगर सिंगल फैक्टर है या मल्टीपल फैक्टर हैं, तो उन चीज़ों में हमें और ध्यान रखना पड़ेगा। और जो खास तौर पे नॉन फूड हैं उसमें एग्स हैं, पीनट बटर है, मिल्क, फिश, व्हीट एंड चिकन, ये दीज आर नोन, एंड आई हैव सीन I mean, a few patients, I mean, elderly patients who became allergic to even anti-allergic tablets also. So this is something we talk about long time back when we जब हमने immunological responses नहीं शुरू हुए थे, अब चीजें नजर आ रही हैं वो। Childhood atopic dermatitis, less acute lesion in the same areas may recur,
apt to less exudative, drier and more popular. Classical locations are the antecubital and popliteal spaces. Uh, Selenium and sepia are the very good medicines if you see for those regional area. The wrist, eyelids, face, carbolic acid, crotontic, corinum and sulfur, or the neck area also. These are the medicines which we have found it to be effective. Pruritus is a constant feature. खारिश खुजली is इसका एक हमेशा का लक्षण रहता है. Itching is compelling, paroxysmal type with inability to feel the pain during the paroxysm. Disseminated neurodermatitis. ये भी एक चीज देखने में आती है कि जो जब इस तरह के एपिसोड्स होते हैं तो कुछ बच्चों में या कुछ पेशेंट में जो paroxysmal एरिया है वहां पे इरिटेशन कुछ होती है और उसकी पता भी नहीं चलता कि उनको किस टाइप की सेंसेशन आ रही है. During child, there is a decrease in frequency of sensitization of non-ingested substances, particularly wool, cat hair, pollen. Feather sensitivity also has its onset in childhood. क्योंकि इन चीज़ों के जो अगर आपके पास कोई घर में आपने पालतू जानवर पाला हुआ है जैसे कुत्ता बिल्ली या कुछ खरगोश वगैरह तो उनके जो हेयर्स हैं या उनके जो बाल वाल हैं वो भी एक हम उसमें एलर्जी पैदा करने के लिए और स्किन की सिम्टम्स को पैदा करने में सक्षम हो सकते हैं. अब बात आती है अब इनको पहचाने कैसे कि कहाँ से एलर्जी है. जैसे मैंने पहले कहा कि इट्स अ रियली वेरी वेरी हरकलिन टास्क. अब जैसे अगर आप मान के देखें कि आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि डिफरेंट टाइप की प्रोटीन उसमें खाने में उनको प्रॉब्लम करती हैं. किसी को राजमा तो ठीक लगते हैं, चावल भी ठीक लगते हैं और छोले की भी ठीक लगते हैं, पर जब वो इकट्ठे खाते हैं राजमा छोले और चावल इकट्ठे हो गए तब उनको प्रॉब्लम हो जाती है. व्हेन वी कॉल्ड इट द मिक्स्ड प्रोटीन रिएक्शंस होते हैं तो उनको पता लगा पाना बड़ा मुश्किल है. जैसे कि हम हमारे अपने यहाँ पे सांबर एक ऐसा डिश है जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डलते हैं. अब वो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स चाहे उनको सूट करते हो पर जब वो इन कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि सांबर खाने के बाद उनको कुछ एलर्जिक सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं. जैसे पहले मैंने बताया कि पैच टेस्ट होता है तो एलर्जन के लिए एंड इनबॉर्न वीकनेस की अनस्टेबल इमोशनल सेंसिटिव नेचर को वो देखना जैसे पहले डिस्कस किया. शुड लर्न टू लिव विद द वीकनेस अवॉइडिंग स्ट्रेस एज फार एज पॉसिबल. ये एक बड़ी कॉमन सी एडवाइस है विच एवरीबडी गिव्स, परंतु इस चीज को अपने उसमें ला पाना उतना आसान नहीं है जितना कि ये इजीली कहा जाता है कहा जा सकता है. It is a chronic but not a serious disease. Though cosmetically it looks repulsive, patient should not get depressed. तो ये हमें जो एटोपिक डर्मेटाइटिस के पेशेंट हैं जिनको कि उससे कोई बहुत ज़्यादा खारिश के अलावा बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है शुरू में और अगर उसको हमें काउंसल करने के टाइम पे उनको समझाना चाहिए कि इनको दे नीड टू अंडरस्टैंड कि इट विल गो विद द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर द ट्रीटमेंट लेने के साथ साथ. तो उनको कॉस्मेटिकली वो जहाँ पे होती हैं उनकी दिक्कत तो उनको भी थोड़ा सा काउंसिल करना जरूरी है. ये चीज और देखी गई है कि एंगर रिजेंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन एग्रावेट्स द होल प्रॉब्लम. बच्चों में और बड़ों में भी जब कभी भी वो इस दौर से गुजरते हैं जब उनको कि बहुत मात्र गुस्सा आ रहा है, रिजेंटमेंट है, फ्रस्ट्रेशन है, तो उनके ये सिम्टम अक्सर बढ़ जाती है. उनकी खारिश की प्रॉब्लम बढ़ जाती है और वो स्क्रैच करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे जो पैचेज आ जाते हैं, ब्लड आ जाता है. और अगर हम उसकी बात करें कि एक कॉमन सी खुजली करना, इचिंग, जो कि एक हम सोरिक के मान के चलते हैं होम्योपैथी की सोरिक हमें सिम्टम ही इच वाला स्टार्ट होता है. बेसिक सिम्टम है, सोरिक सिम्टम वहां से आते हैं. परंतु एक इच ऐसी चीज है जब आदमी खाली बैठा होता है उस समय में उसको ये चीज ज्यादा होती है. कभी जहाँ पे यहाँ मार लिया, कभी यहाँ मार लिया, वहां मार लिया. और अगर वही व्यक्ति अपने आप को बिजी रखता है किसी अपने आप काम में, कंस्ट्रक्टिव काम में, तो उसको इस चीज के से अपने आप को काफी हद तक दूर रख सकता है. और ऐसे समय में हमारे पास हमारी होम्योपैथी के अंदर ब्यूटीफुल दवाइयां हैं जिसमें कि इग्निशिया है, स्टेफिस एग्रिया है, सल्फर है एंड एसिड फॉस.
क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में द यूजुअली प्रेजेंट खारिश खुजली के साथ साथ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लैक्स जैसे मैंने पहले बताया, एंड टेंडेंसी टुवर्ड chronically relapsing dermatitis, blood count shows eosinophilia। अगर हम ऐसे पेशेंट की जिसकी रिपीटेडली प्रॉब्लम होती जा रही है, खारिश बढ़ती जा रही है, ठीक होती है, फिर दोबारा हो जाती है, और अगर हम उसका ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हमें उसमें eosinophil काउंट रेज मिलेंगे, और IgE लेवल्स आर फाउंड टू बी रेज्ड। ये एक IgE लेवल ऐसा है जो आज की डेट में हमें इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स बताता है पेशेंट की सेंसिटिविटी का। और कई बारी ये देखने में आया कि उसका eosinophil काउंट ठीक है पर IgE काउंट रेज्ड है, विच इज नॉर्मली उसका क्या नाम 65 तक होता है, या किसी किसी लैब में 110 तक लेते हैं, तो ब्लड पेशेंट के हजारों में भी जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। और दूसरी बात, जिस पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अगर हम आप उसकी ये पीरियोडिकली चीज़ें चेक कराते रहें, तो ये भी पेरेंट्स के और इसके पेशेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, लाभदायक लगता है कि उसको ये रिस्पॉन्स, अगर रिपोर्ट्स कम आ रही हैं तो उसको लगता है कि हाँ मेरी एलर्जी शायद ठीक हो रही है। तो यहाँ पे एक हमें जो एक लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन की हेल्प है, एक तो उसमें डायग्नोज करने में, और एक उसके जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ प्रोग्रेशन में, ये हमें काफी हद तक हेल्प कर सकता है बताने में पेशेंट के लिए। नाउ एटॉपिक डर्मेटाइटिस को डिफरेंशिएट करना भी जरूरी है, क्योंकि इसी तरह की मिलती जुलती पिक्चर कुछ और पेशेंट में भी आ सकती है। जैसे कि सिबोरिक डर्मेटाइटिस, जैसे कि इस लड़की के, इसको सिबोरिक डर्मेटाइटिस है, इसकी आंखों के ऊपर लीजन आए हुए हैं। दिस इज नॉट एटॉपिक डर्मेटाइटिस, दिस इज सिबोरिक डर्मेटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, स्केबीज, सोरियासिस एंड डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, इस कंडीशन को हमें एटॉपिक डर्मेटाइटिस से डिफरेंशियल डायग्नोज कर लेना जरूरी है। नाउ कमिंग टू द डूज एंड डोंट्स, एनी एक्सटर्नल इरिटेशन should be avoided, sudden change of temperature must be avoided, excessive bathing, vigorous rubbing, or insufficient cleanliness, especially in diaper area, local infections, irritating secretions, and medicated oils are to be avoided। ये हमें हिदायत अपने पेशेंट्स को जरूर देनी चाहिए कि उनको क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपकी दवाई का चयन ठीक दिया, ठीक दे रहे हैं, परंतु पेशेंट की जो रख रखाव है उसमें डूज एंड डोंट्स को प्रॉपर फॉलो नहीं करते, तो ऐसे समय में पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। Mechanical restraints may be used or trying to splints over elbow to prevent the child hand from scratching his face। जैसे ये आपने मैंने पहले केस में दिखाया था, ये उनकी प्रिकॉशनरी मेजर है कि उनको हाथ बच्चे के हाथ बांधे हुए हैं और ग्लव्स पहने हुए हैं और बांध रखे, ताकि वो उसको स्क्रैच ना करे, क्योंकि स्क्रैच करेगा तो तकलीफ बढ़ेगी। ऑलिव ऑयल एंड एब्जॉर्बेंट कॉटन में बी यूज फॉर द क्लिनजिंग, सफाई करने के लिए आप ये यूज करते हैं। जेनाइटल और बटक एरिया शुड रिमेन ड्राई, उनमें हमें ना जितना सूखापन होगा वो ज्यादा अच्छा है। अगर वहाँ पे जैसे कई बार बच्चे को होता है कि उन्होंने सूसू करा हुआ है या पॉटी करी हुई है और वहाँ पे गीलापन रहता है, मॉइस्चर रहता है, तो वहाँ पे लीजन बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और अगर खासतौर पे जो कपड़े या उनकी नेपीज हैं वो बाय चांस आपकी प्योर कॉटन की ना हो के मिक्स्ड कपड़े की हैं, तो प्रॉब्लम और ज्यादा हो सकती है। क्लीन विद वेजिटेबल और मिनरल ऑयल एंड पाउडर एंड कॉर्न स्टार्च। इन केसेस वेयर स्पेसिफिक फूड एलर्जीज आर इम्प्लीकेटेड, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन आर इन ऑर्डर। अगर हमें किसी उसका बच्चे का पता चलता है या किसी भी पेशेंट का पता चलता है कि उसको इस चीज से एलर्जी है, तो हमें उस चीज को रिस्ट्रिक्ट करने की सलाह उसको जरूर देनी चाहिए। हाँ,
नाउ ये एक आई मीन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। मार्च 2021 में उसकी पेशेंट की हालत ये थी, पूरे यहाँ पे स्केल्स आए हुए, कानों के पीछे से आई मीन ब्लड आता था। और इसका मैंने अभी IgE लेवल के बारे में बात कर रहा था, तो इस पेशेंट का IgE लेवल 7749 था मार्च 2021 में। अब नाउ दिस पेशेंट ये कनाडा में है। जो पहले कान में साइड में ब्लड आता था वो ओवरऑल ओवरऑल कैसा है? और इस तरह और कोई प्रॉब्लम नहीं ना? पेट पेट ठीक है? पेट पेट वगैरह ठीक है? नींद वगैरह वो भी लाने वाले वो भी नहीं है? आप इसको आई मीन डिफरेंट टाइम पे एपिस आर्थायोड एंड हिस्टामिन दवाई दी गई। और इग्निशिया टिंचर मैं यहाँ पे अपना शेयर करना चाहूँगा। इग्निशिया टिंचर उसको मैं यूज़ करता हूँ, मैं बिकॉज आई हैव फाउंड इट टू बी यूजफुल। मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। इग्निशिया टिंचर को पेशेंट को जब नहाने के बाद पूरा नहा लिया, उसको कहा जाए कि इग्निशिया की कुछ ड्रॉप्स 20-25 ड्रॉप एक चौथाई बाल्टी में पानी में डाल के उसको मिक्स करके एक मुलायम कपड़े के साथ जहां जहां पे लीजन्स हैं उनके, उनको 8-10 बारी ऐसे करके ऊपर से वो पानी भी उड़ेल लें और उसको अपने आप सूखने दें, या टॉवल से हल्का हल्का डैब कर लें, टॉवल से रगड़े नहीं। तो उसमें केस में बहुत अच्छा रिलीफ पेशेंट को मिलता है। वी आर नॉट यूजिंग एनी लोकल एप्लीकेशन। जो मैं अपने पेशेंट में यूज करता हूँ, मैंने सिर्फ मैक्सिमम एप्लीकेशन यूज करी है लोकल किसी में, तो वो है दैट इज इग्निशिया टिंचर, दैट टू विद द बाथ, बट नॉट लोकल एप्लीकेशन ऑन दैट।
Well, this was one of the, testimony of the patient. The child you had seen gone through the different stages, and it was really terrible kind of a thing with it. Pictures we have seen. I would like to tell you on this particular case, sepia was the medicine which did the wonders. And the cause I chose sepia, as I said, that there are different stages. She had been given different kind of a medication and all that. She was the child of these two parents. They had a love marriage, but they had a difference of opinion right from beginning, and they used to fight almost every day and night in front of the child. And the child had been so sensitive that when she became little grown up, when she could talk, she would resist talking to any of the parents. कि आप जाओ, मेरे को आपसे बात करनी ना आपसे बात करनी है. And otherwise, she would love both the parents separately. When the father is with her, she would love that. When the mother is there, she would love her. But when both of them are there and they are fighting, so she would say that I do not want either of you. So this was a one kind of a thing. The most loved ones were most hated ones. She used the word कि आप यहाँ से चले जाओ. These were the ones sepia has given me the reason to give that, and she would be the one who would be better and doing things all alone, playing. Now she's a very good artist. She has written books. She is a topper in her school. She's a multi-talented girl, and I feel really very very happy. So does she and her mother feel about homeopathy, who had brought her to this particular stage. And useful homeopathic remedies, which I have found to be effective are alumina, arsenic album, anti-include, bovista, cantheris, cicuta, clematis, caladium, cryosuminic acid, protontic, dalcamara, acid floor, graphitis, heper, hydrocotyle, ignatia, kaliars, mirth, Fusarium. These are all remedies which I have seen and found to be effective. But since it is neither a class where we can need to teach that medication, but these are the medicines which I want to share that I have found them to be useful in my practice. And with this, I would like to say thank you very much. आपका जो समय के हिसाब से पूरा करने के लिए. I think हमें समय में हो गया पूरा. बहुत अच्छा रहा डॉक्टर गुप्ता साहब. अब आप अपना पीपीटी को जी अब अपना हटा लूं ना मैं स्टॉप जी. इन्हीं को कोई प्रश्न है, इन्हीं को कुछ कमेंट करना है या प्रश्न करना है. डॉक्टर दीपमाला जी, डॉक्टर दीपमाला जी. यस सर. हाँ, आप इसको देख लीजिए, मीटिंग का टाइम हो गया है. हाँ
किन्हीं का कोई क्वेश्चन? सर चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सर का प्रेजेंटेशन तो बहुत ही अच्छा था। किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली हैंड रेज करें या चैट बॉक्स में टाइप भी आप कर सकते हैं। एक मिनट बस। अगर मैं वो तो मैं उसमें अपने साथी के साथ हमारे के बारे में बात कर सकता हूँ डॉक्टर साहब? सर हाँ सर मेरे पास है। अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर। हाँ कोई क्वेश्चन सर हमारे पास अभी है नहीं, हमारे पास 2 मिनट बचे हुए हैं। अगर आप अच्छा। लोग हुमायूं के विषय में कुछ शेयर कीजिए सर। हाँ, तो फिर हम ये इस बात में डॉक्टर सानी से परमिशन लेके एक होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है जिसके हम आप सबको पता ही होगा, तो हम उनके लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका मेंबर बनाएं, जो हम वो हमारे मेंबर बने। अब उसका मेंबर बनने का फायदा क्या होगा, ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि एक तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जैसे ये अपना वेबिनार यहाँ पे हम अपने रेगुलर होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के थ्रू भी हम 2 फंक्शंस करते हैं। एक तो साइंटिफिक सेमिनार होता है और एक साइंटिफिक कांग्रेस होती है, जो 2 दिन की कहीं पे अलग अलग प्रदेशों में होती है। जैसे कि पिछली बारी दिल्ली में हुआ था दिसंबर में, और एक बहुत बड़ी ग्रैंड सक्सेसफुल फंक्शन था। डॉक्टर सानी वॉज ऑल्सो देयर। और इसमें आज के टाइम पे जो हमारी ये जितनी अथॉरिटीज हैं, उन अथॉरिटीज में जो कोई काम होता है वो वहां से वहां तक एक आम जनता तक या आम डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाता। तो अभी वर्ल्ड होम्योपैथिक डे था, उसमें भी एक हमारी एक पैनल डिस्कशन हुआ था इसके ऊपर एसोसिएशन के साथ। तो मैंने वहां पे भी ये कहा था कि आप जो रिसर्च वर्क है, जो सीसीआरएच काम कर रहा है, तो एक आम डॉक्टर के पास वो दूर दराज कोने में बैठा हुआ है या कहाँ पे भी बैठा हुआ है, तो उस तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती। तो अब हम प्रयत्न कर रहे हैं कि वो वहां से इस एसोसिएशन के थ्रू आप लोगों तक वो सारी जानकारी पहुंचाई जाए और आप लोगों तक को भी मतलब उसका बेनिफिट मिले पर प्रैक्टिशनर को। तो दिस इज आवर एम। और हम आने वाले समय में चाहते हैं कि लाइक हमारी जो अभी तक होम्योपैथी की आपस में लोगों की कोई आवाज है वो सरकार नहीं सुनती, तो ऐसे समय में जब तक हम यूनाइटेड नहीं होंगे तो शायद हमें इतना ज्यादा वो नहीं मिल पाएगा। तो कोशिश हमारी ये है, तो मैं बल्कि आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें अधिक से अधिक नंबर में हमारी को ज्वाइन करें और अपने फ्रेंड्स और अपने कुलीग्स को भी बोलें, ताकि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकें जहाँ पे गवर्नमेंट, जैसे एलोपैथी की IMA है, तो हमें हमारी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम चाहते हैं पर वहां तक पहुंच नहीं पाती। तो उसके लिए एक बॉडी बनाने की जरूरत है जिसको हम अच्छे लेवल पे सरकार से बात करने तक के कर सके। ये मैं डॉक्टर सानी सर से मैंने रिक्वेस्ट कर रहा कि ये मैं अपनी रिक्वेस्ट करूंगा तो उन्होंने कहा जरूर बोल सकते। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा शेयर किया है। और Thank मैं you भी very सबसे अपील करूंगा कि डॉक्टर गुप्ता साहब इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, काफी एक्टिव हैं और आप सभी कोई सहयोग करें। एक साथ कहते हैं कि संगे शक्ति कलियुगे, इस समय का सबसे बड़ा शक्ति क्या है? यूनाइट। हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर रहेंगे तो सब कोई अच्छे रहेंगे। तो इसके साथ में हाँ सही बताया कि जैसे IMA का है वैसे ही हमारा भी होना चाहिए। इस बात से तो हम लोग नहीं डॉक्टर साहब, ये चाहिए वाली बात तो सब कहते हैं पर करता कोई नहीं ना। तो अब हम चाहने तक नहीं, हम करने की बात कर रहे हैं अब। तो लेट्स डू इट। यस ठीक है, थैंक यू सर। अब हमारा टाइम खत्म हो रहा है।
हाँ ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वंस अगेन सर। अब हमारा इंग्लिश सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है।